quality assurance is not very you can say बहुत बहुत अभी से नहीं, हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं ISI के नाम से, जहाँ पे हर एक पे ISI है या नहीं हम देखते थे। लेकिन अब क्योंकि एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तब गवर्नमेंट को लगा, दे ऑल आर वेरी क्यूरियस दैट हमने प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया है, पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे दिया है, लेकिन हम उनकी क्वालिटी को कैसे हम, हाउ कैन वी मेजर द क्वालिटी ऑफ दैट? सो दे स्टार्टेड दिस NAC, NIRF, everything. So you will be in competition, and so if you are in competition, you will be going for good, going for best, good, better, best, something. So मुझे याद आता है अराउंड 2011 जब हम फर्स्ट राउंड NAC का एक्रेडिटेशन के लिए थे, और वो क्योंकि फर्स्ट टाइम था, दैट वाज जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट, सो लास्ट 1 month वाज सो टीडियस. Every day data, presentations, how can you go for better? So what we learned from that 2011, we got that time, I think A was the highest accreditation, and then we got the A, NAC A. And after that they provided it NAC A++ is all the highest. So the first learning was that this is not a process of 1 month or 1 week or 1 day. This is a process, a continuous process. You need to continuously showcase your activities, continuously implement your activities. You should record all the activities. You should also disseminate your activities, your reports, at various platforms. So your data will be up to date from day 1 of your cycle, next cycle. This is very important for any of the accreditation or assessment process, because when हमने वो प्रोग्राम उस समय किया था और उसका फोटोग्राफ नहीं मिल रहा है, उसका हमें क्या क्या कितने हमारे पार्टिसिपेंट थे, वो सब कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, ये हम लोग कई बार करते हैं. सो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको, now our IQAC, Internal Quality Assurance Cell, should also be very active, and every year or in 6 months they should collect all the data from different departments, different heads, so they can merge all the data, because merging all the data of one institution is also a big work, from different departments, different stakeholders, because only students are not stakeholder now. Parents are also stakeholders, your alumni are also stakeholders, your other community members, they are also stakeholders. So you have to collect data from them step by step and in systematic manner. This is very important for any successful best accreditation rated institutions. Another important thing, that is, we should always go for some good work, some innovative work. And some of our staff, some of our staff, you can get colleagues, faculty, should involve continuously in this project. You can say this is a project, like, because if you get some A++, you will get some many opportunities and many facilities from the authorities. So some of your faculty should involve continuously in this, so because there are so many updates every year, so many updates, so many variations in the assessment process, accreditation process. So you are aware of about
all the updates and all the requirements. I remember that when we got this in 2020 NAC A++, our as I remember, our dissemination, our showcasing was as up to that level that all the members of NAC are already impressed before coming to the institution. They are going good. They are showcasing on many platforms like social media, like you can say some conferences. So it is also important. How can you show your work at various platforms? So this is another asset to you, that your assessors are already impressed with you. But nowadays, that assessment is not more get pie of that circle, because data is more and more important in these days. So how to create data, how to create data and present the data is most important. Because when we start our year with enrollments of the students, admission of the students, we need to understand that what type of data we require. So we can plan our year, our academic year, according to that. How many conferences we will have to plan, how many placement or some recruitment, campus recruitment process we can connect to our industry or our field. So these are many things. If you are go plan it in advance of any year, this is the second most important thing. You can go for that. And understanding each and every part of the assessment and accreditation process is very important, because there are so many things NAC adopted from other areas. Like last time, what I was saying, we are assessing the teaching learning process through that NBA processes. NBA is that COPO mapping. They are mapping COPO and evaluating your teaching learning process. So these processes are little mechanical because of the mathematics, but we should understand what they are. They are not so difficult. They are, but one thing is important, that we have to learn. And I am very thankful to Dr. Sanjay Kumar sir and CTEF that they are going to introduce all the things to you in advance. It's very important for all the participants to understand the processes and the implementation processes of the things, the reporting, how to report. These are very important. So I again congratulate the council and all the members and participants, and best wishes for this 10 days. I think this is 10 days program. Yeah. I think after that, this program, you all of empowered to challenge the NAC in your institution with all the data and all the reports. Thank you very much, Dr. Sanjay sir and CTE team for inviting me in this occasion. Thank you sir. जो मुझे आपकी बातों से समझ आया कि एक तो हम जो भी कुछ करें उसका एविडेंस डेटा की फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए, अगर मैं उसको कंक्लूड करूं, ब्रीफ करूं, और दूसरा वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए जिसको कि ठीक से हम शोकेस कर सकें। थैंक यू सो मच सर। छोटी सी बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। हम लोग अभी 3 से 8 अगस्त के बीच में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, दैट इज that is a program on faculty development program, and it is on institutional social responsibility, which is one of the important part of the NAC. Yes sir. Institutional social responsibility, and we are going to organize it with the
Mahatma Gandhi National Council for Rural Education, that is Ministry of Education institution, and this is totally registration free, and we are going to give you all the accommodation and everything. So I invite all of you, if you can participate, any of your member participate from your institution. This is a 6-day residential program at Vanashri Vidyapith. On only 25 candidates are we can select for that. So this is a very important for NAC also. Thank you very much. Thank you so much sir for the invitation of the program. Thank you so much. बिल्कुल सोचेंगे इसके बारे में, पार्टिसिपेट करने के बारे में, और एक बड़ा मकसद लेके सर चल रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली आप साथ होंगे तो इस तरह के मकसद को जरूर अचीव करेंगे हम लोग। थैंक यू सर सब। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि अब हमारे 2 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सेशंस होंगे, जिसका एक का जो होस्ट मैं खुद करूंगा, मॉडरेटर मैं खुद रहूंगा, और दूसरा जो सेशन होगा उसकी होस्ट प्रोफेसर तानिया गुप्ता मैम होंगी। तो टुडेज फर्स्ट रिसोर्स पर्सन इज डॉक्टर कुलजिंदर कौर मैम। शी इज ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल केसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पंजाब। तो आई वेलकम यू मैम। आई थिंक कुलजिंदर मैम का वीडियो शायद ऑन नहीं है, आज थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। कुलजिंदर मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, कुलजिंदर मैम का वीडियो तो आ रहा है सर। एक मिनट, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ मुझे वही लग रहा है कि उन्होंने मोबाइल से कनेक्ट किया है ना। नहीं, वीडियो आ रहा है उनका, मैम दिखाई दे रही है। जी मैं अभी करता हूँ सर, एक मिनट वेट। कुलजिंदर मैम, यस। कुलजिंदर मैम अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को? जी, थैंक यू सर। ओके, एम आई ऑडिबल जी? यस मैम आप ऑडिबल हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मेरे पास जो कुलजिंदर मैम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो वैल्यू एडेड कोर्सेज और ऑनरिंग डाइवर्सिटी हैं। अप्रोक्स 46 क्वेश्चंस लोगों ने जो गूगल फॉर्म शेयर किया था उसमें पूछे थे, और मैंने कोशिश की है कि उन 46 क्वेश्चंस को मैं समराइज करके किसी ना किसी तरह 8 या 9 क्वेश्चंस में फ्रेम कर दिया, जिससे कि हमें सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए। तो कुलजिंदर मैम आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ज्यादातर लोगों ने पूछा है, मतलब मैक्सिमम लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज हैं कि वैल्यू एडेड कोर्स होते किस तरह के, मतलब वो किसी भी कोर्स को जो 30 आवर्स का है उसे वो वैल्यू एडेड कोर्स मान लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है उनके लिए इस चीज में। कुछ लोगों को क्लियर है, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं जो क्वेश्चंस पूछे लोगों ने। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए कि वैल्यू एडेड कोर्सेज 30 आवर्स के होते हैं, ये तो लोगों को पता है, लेकिन कैसे पहचाने कि ये वैल्यू एडेड है और ये वैल्यू एडेड नहीं है? जी सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। वैल्यू एडेड कोर्सेज जो हैं ये नैक में करिकुलम एनरिचमेंट इंडिकेटर है 1.3, उसके अंडर नैक उसके बारे में बात करती है हमारे साथ कि एक हम इनका ऐसे कोर्सेज जिनका मेन मकसद है बच्चों की, स्टूडेंट्स की एकेडमिक जो नीड्स हैं वो तो वो करिकुलम पूरा कर ही रहा है, उसके अलावा हमने उनके लेवल को एनहांस करना है एम्प्लॉयमेबिलिटी पर्पस से। ओके, इस तरह के कोर्सेज, हाँ बिल्कुल सही, 30 आवर्स के हैं ऐसे कोर्सेज जो they are according to the inclination of the students, उनके खुद के इंटरेस्ट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो बच्चे क्रॉस कटिंग एंड प्रेसिंग इश्यूज को फेस करते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम स्पेसिफाइड कोर्सेज हैं जो हम बच्चों को देते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज। दीज आर द वैल्यू एडेड कोर्सेज। ओके, मतलब मैं ये मान के चलूं कि जो मेन एम्फेसिस है कि अगर कोई भी ऐसा कोर्स जो बच्चे कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर उनकी मदद करता है, उनको
जॉब दिलाने में, एक तरह से मैं कहूँ बड़े सिंपल से लैंग्वेज में, तो उस तरह के कोर्सेज जो हैं वो वैल्यू एडेड बिल्कुल सर, कोर्सेज होते हैं। एक बात कभी मैं भी कहना जो चाहूंगा सर, एक जी बात कहना चाहूंगा, यहाँ वैल्यू एडेड में कई बार कंफ्यूजन होता है, जी जी क्योंकि सर। कई बार वैल्यू को हम वैल्यूज से रिलेट कर देते हैं, जो कि नैतिक शिक्षा, मौलिक को उससे रिलेट कर देते हैं। जी सर। लेकिन जी यहाँ नैक का ये मतलब नहीं है। वैल्यू एडेड का मतलब है कि कुछ ऐसी वैल्यूज ऐड हो जिससे कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। बिल्कुल जी बिल्कुल जैसे आईसीटी के कोर्सेज हैं या स्किल्स हैं, जी उस टाइप के जो कोर्सेज हैं उनको अगर वो ले तो वैल्यू एडेड कोर्सेज कहलाए। जी सर। जी जी सर, थैंक यू सर। और दूसरा क्वेश्चन था मेरा कुलजिंदर मैम आपसे कि ये तो आपने बता दिया, ठीक है, कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। क्या कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं बीएड कॉलेजेस के लिए स्पेसिफिकली, कि भाई ये कुछ कोर्सेज हैं बीएड कॉलेज वाले अगर रन करते हैं 30 आवर्स में, तो उनके लिए जी वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे वो? जी सर, सर ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं जो बीएड कॉलेजेस बड़े आराम से रन कर सकते हैं, जिसमें कि आपके योगा कोर्सेज हैं, आपके म्यूजिक से रिलेटेड कोर्सेज हैं, आईसीटी बेस्ड कोर्सेज हैं जिसमें कि हमने बेसिक्स बच्चों को करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज चल रही है, रिसर्च कह सकते हैं, ये है आपका, जैसे कि आज हम ऑनलाइन बैठे हैं, ये इंटर्नशिप है। हम अगर हमारे बीएड कॉलेज में बीएड और एमएड दोनों है तो हम बच्चों को इंटर्नशिप करवा सकते हैं थ्रू दिस मीडिया। इसमें हमें एमओयू साइन करने होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो कि हमारे हेल्प कर सकते हैं बच्चों को इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके तो मैम। इस तरह से जो आप बीएड कॉलेजेस हैं उसमें बहुत सारे कोर्सेज जो है, डिपेंड करता है कि आपके ओनली बीएड है, एमएड है, बीएलएड है, क्या कोर्सेज आप रन कर रहे हैं अपने कॉलेज के अंडर। उसके अकॉर्डिंग हम कोर्सेज को चूज कर सकते हैं जो हमारे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। डांस, ड्रामा, एवरी टाइप ऑफ कोर्सेज जो उनकी इंक्लाइन जो है बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके कुलजिंदर मैम, जो भी आंसर रिसोर्स पर्संस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं कुछ किसी को मतलब जो पार्टिसिपेंट से लगता है कि उसमें कहीं डिस्कशन हो सकता है, तो लास्ट सेशन हम उसका रखेंगे जैसा कि मैंने कहा था, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं उस चीज को, उन चीजों को भी लिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था उसमें कि कैन वी आउटसोर्स वैल्यू एडेड कोर्सेज? क्या आउटसोर्स कर सकते हैं, या ये कंपल्सन है कि जो कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स हैं वही क्रिएट करें और वही उसका ब्रोशर या करिकुलम तैयार करें और वही प्रोवाइड करें? क्योंकि इसमें बहुत जी ज्यादा नहीं, कंफ्यूजन है, बहुत क्वेश्चन आया है ये नहीं मेरे नहीं पास। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एनी मीडिया जो हमारे स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हेल्प कर सकता है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं इसमें एक और ऐड भी करना चाहूंगी कि हमारे जो एनएसएस यूनिट होता है कॉलेजेस में, उसको हम एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करके भी हम बच्चों को जो है वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है डेवलप कर भी सकते हैं। और बाहर वाले, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि इंस्टीट्यूट्स के साथ हम, अभी एक क्वेश्चन भी मेरा फ्लैश हो रहा है कि क्या हमें एमओयूज करनी है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, पर जब हमने बाहर के इंस्टीट्यूट्स के साथ जब हमने कोलैबोरेशंस करनी होती है तो एमओयूज जो है वो हमारी हेल्प करते हैं नैक में। तो उस केसेस में हम एमओयूज करके भी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही सही है, स्किल्ड पर्संस को हमने बुलाना है और हम किसी भी स्किल्ड पर्सन को अपने इंस्टीट्यूट में बुला सकते हैं इस तरह के कोर्सेज हेल्प करने के लिए बच्चों जी के लिए। जी, थैंक यू मैम। तो ये कंपल्शन। जी जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि क्या इस तरह के कोर्सेज क्रेडिट कोर्स में काउंट होंगे या नॉन क्रेडिट कोर्स में? थोड़ा सा वैसे तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे चला जाता है क्वेश्चन, लेकिन जी फिर सर। भी कुछ लोगों ने पूछा है इस क्वेश्चन को कि जी सर, ये एक सचमुच में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। जैसे कि हम इसके साथ ही मैं एबीसी की इसमें बात करूंगी पहले। लाइक हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अब हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं, और उसमें उन्होंने बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बैंक की बात भी करी है। तो इसमें भी जो वैल्यू एडेड कोर्सेज है, कुछ टाइम से मेरा काफी लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है, कुछ टाइम पहले भी इसका यूनिवर्सिटीज के साथ हुआ। तो इसके जो क्रेडिट्स हैं, होते हैं इसके क्रेडिट्स, दो दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स, तो इसके जो क्रेडिट्स हैं हमने फिक्स करने होते हैं। जैसे कि आपने 30 आवर्स का कोर्स है,
आपने थ्योरेटिकल कितनी क्लासेस दी हैं, आपने प्रैक्टिकल कितनी क्लासेस दी हैं, आप थ्योरी को हमने एक थ्योरी प्रैक्टिक मतलब 1 आवर थ्योरी को हमने 1 क्रेडिट, और जो स्किल्ड जो भी हम फील्ड वर्क है या फिर आपका प्रैक्टिकल वर्क है 2 आवर्स का है, उनको 1 क्रेडिट के अकॉर्डिंग हमने क्रेडिट्स देने होते हैं। ये क्रेडिट्स हमारे एबीसी में जो है वो हो जाएंगे और ये फुली बच्चे को हेल्प करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, पासिंग क्राइटेरिया किस तरह का रखा जाता है वैल्यू एडिड कोर्सेज का? ये भी काफी लोगों ने पूछा। जी सर, इसमें सबसे पहले तो ये वैल्यू एडिड कोर्सेज आ गया, इसे कौन अप्रूव करेगा, और ये हमारे खुद के दायरे में है। हमारा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इन्हें जो सिलेबस है वो डिसाइड करते हैं। जो भी हमारी टीम बैठती है उसके साथ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का अप्रूवल होगा। उसके बाद जो है इसका सिलेबस जो भी डिसाइड होगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमने मिनिमम 30 आवर्स रखने ही रखने हैं, और ये सारे ही बच्चों को जो हैं वो करने ही पड़ेंगे। जो 30 आवर्स है पूरे, अब वो कैसे पूरे करवाने हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के बीच में कुछ आवर्स मिस हो जाते हैं, तो क्या हम बच्चों को आगे एक्सटेंड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम देंगे? सिर्फ उन बच्चों को जिनके वो आवर्स हैं, मतलब जिनका ये मिनिमम अपना क्राइटेरिया पूरा करता है स्टूडेंट, उसके बेसिस पे जो इंस्टीट्यूट है इवेलुएट करेगा उनको, उनके प्रॉपर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स रखेगा, और इन सभी के बेसिस पे बाद में एक इवेलुएशन हम टेस्ट भी करेंगे बच्चों का, और उसके बेसिस पे एंड में जो बच्चे क्लियर करेंगे इसका यूनिवर्सिटीज जो हैं अपने अपने लेवल पे, कॉलेजेस अपने अपने लेवल पे क्राइटेरिया सेट कर देते हैं मार्क्स का। कुछ कहते हैं कि कम से कम 50% तो बच्चे को जो भी उनका इवेलुएशन टेस्ट है या क्राइटेरिया है उसमें 50% तो अचीव करने ही पड़ेंगे मार्क्स। तो अगर हम इस तरह के क्राइटेरियाज भी सेट करते हैं तो उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे एंड में हम बच्चे को सर्टिफिकेट इशू करते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा कि हाउ आर स्लो लर्नर्स एड्रेस्ड? क्योंकि स्लो लर्नर्स को कैसे एड्रेस करें डाइवर्सिटी में, स्टूडेंट डाइवर्सिटी में, ये जी काफी जी लोगों सर, ने पूछा। जी जी सर। सर देखिए, सबसे पहले तो हमें बच्चों का पता होना चाहिए कि वो स्लो लर्नर्स हैं। इसके लिए पहले हमने पता कर लिया फर्स्ट स्टेज में आके। यस, सबसे पहला रीइंफोर्समेंट्स, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसकी डाइवर्सिटी को ऑनर करते हैं हम। सबसे पहले तो वो बच्चे को हमेशा फेवर करती हैं जो उसकी रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा जो टाइम टेबल में और जो बच्चे के साथ हम बिहेवियर्स करते हैं वो उसमें फ्रीडम भी होनी चाहिए और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आपकी लेसन प्लानिंग भी इस उन बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पीयर ट्यूटरिंग को हम लोग जो है बढ़ावा दे सकते हैं इन बच्चों के लिए। और पीयर ट्यूटरिंग में ऐसे होता है कि बच्चों को आपस में ग्रुप डिस्कशंस जो वो करते हैं तो उनसे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होते हैं। और सबसे जरूरी जो मुझे लगता है, इन बच्चों को समझना, इनकी जरूरतों को समझना, और इनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखना, ये चीजें जो हैं हमारे जो स्लो लर्नर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हेल्प कर सकती हैं। ओके मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हाउ एडवांस्ड लर्नर्स आर एड्रेस्ड? जी सर, तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली काफी जैसे लोगों ने पूछा है, एडवांस लर्नर्स जी जी रिलेटेड। जी जी सर, इसके लिए एडवांस्ड लर्नर्स को हैंडल करना रियली अ टीडियस जॉब फॉर अ गुड टीचर स्पेशली, क्योंकि जिनको पता है कि मुझे इस बच्चे को हैंडल करना है, सबसे पहले हमें बच्चों के इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। हमें उनको कुछ एक्स्ट्रा देना है, इनके लिए एक्सटेंशन लेक्चर्स। इसके अलावा बच्चों को टीचर का रोल देना, और बुक बैंक्स जो है वो इन बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स का ऑफर है वो भी इन बच्चों की बहुत हेल्प करता है। जो बुक बैंक वाला मैंने अभी बात करी है, बुक बैंक में इसमें हमने ग्रुप्स बनाने होते हैं बच्चों के, और उनको कुछ समथिंग एक्स्ट्रा जो है हमने बच्चों को बताना होता है बुक्स के बारे में, और उनको प्रोवाइड करना होता है वो सारा मटेरियल बुक बैंक के अंडर।
बुक बैंक्स का है, इनके क्लब्स बनाए जा सकते हैं, और बच्चों के लिए, इन बच्चों को हैंडल करने के लिए एक दो मेथड्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स देना बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के यूज करके हम टीच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, और इनसे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। मतलब इस तरह से हम एडवांस्ड लर्नर को हैंडल कर सकते हैं, उनकी नीड्स को केटर करके। जी, थैंक यू कुलजिंदर मैम। जैसे you, sir. कि आप सभी को पता है कि इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि आप इसमें रिसोर्स पर्सन को चैलेंज भी कर सकते हैं, कि आप ये मान के ना चलें, क्योंकि इंटरनल रिसोर्स पर्सन से सभी मोर क्लियर और रिफाइन करना है हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को। जो थर्ड सेशन है तो आप नोट डाउन करके रखें, और जो भी आगे भी रिसोर्स पर्सन बनेंगे तो जो भी वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप वैसा ही मान के चलें, क्योंकि सभी उस वर्क से रिलेटेड हैं और कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करना है। तो जो थर्ड सेशन होगा इसी में अभी, तो उसमें जहां पर भी डाउट्स, जहां पर भी इंफॉर्मेशंस में गैप्स नजर आते हैं, तो वहां पर वो आप नोट डाउन करके रखें और क्वेश्चंस पूछें उससे रिलेटेड। फर्स्ट सेशन इज ओवर। मैं सेकंड सेशन के लिए प्रोफेसर तानिया गुप्ता मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंटिन्यू करें प्रवेश मैम के साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। वी हैव विद अस आवर सेकंड रिसोर्स पर्सन डॉक्टर परवेश लता। मैडम इज presently associate professor and HOD in the School of Education, GD Goenka University, and she's a part of us, so I don't think I have to give too much of introduction, but फिर भी क्या resource person है हमारी, so मेरा बनता है कि मैंने formally एक introduction दूं। प्रवेश लता जी, she is MSc in Environmental Science, MEd and PhD education, and prior to जो इनका अभी असाइनमेंट है एज HOD एट स्कूल ऑफ एजुकेशन GD Goenka, with vast experience of over 14 years at the college level, which have been affiliated with IP University, and she has been instrumental in leading a lot of projects under the scheme of Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching. And firstly, ma'am, welcome to you for the session. और आपके साथ जो बात है करनी है वो बहुत important है, वो भी बहुत ही confusing क्षेत्र है, publications, collaborations, और मुझे उम्मीद है कि जैसे संजय सर ने कहा है कि थर्ड सेशन में काफी questions इसके आएंगे, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बस इसमें थोड़े से questions brief रखें और फिर interaction open करेंगे। I mean in context of अगर हम teacher education colleges देखते हैं और university level के भी कई लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, so दोनों में ही अगर हम basic questions देखें, ये criteria 3 का पार्ट है research, और research हम सभी जानते हैं कि बहुत important है, but एक recent notification है जो कहता है कि सिर्फ UGC केयर listed journals में ही publications मानी जाएंगी। तो आप मैम थोड़ा बताएं व्हाट इज दिस UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स, यहाँ से शुरू करते हैं, और किस तरह के जर्नल्स एक्सेप्टेबल हैं, आप इस पे थोड़ा सा मैम एम्फेसिस कीजिए। यस मैम, और आज के टाइम में पब्लिकेशंस को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेंसीज आर देयर, नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, they are making business in this, so we should clear about this, that what kind of journals will be included. Only and only UGC listed journal will be included as per NEC requirement, and there are 2 lists, that is UGC care list 1 and UGC care list 2. So UGC care list, that is group 1, that is general found, that is qualified through the UGC care protocols, but जो UGC list 2 है उसके अंदर जो ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेसेस हैं उसमें जो जनरल इंडेक्स्ड हैं वो आपके काउंट होते हैं। अब उसमें आपके आ जाते हैं, जैसे वेब ऑफ साइंस है, वेब ऑफ साइंस में भी आपकी कैटेगरीज हैं,
जिसमें आप देखते हैं जब आप जर्नल्स को कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स इतना है, साइंस साइटेशन इंडेक्स इतना है, सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स इतना है, और इसमें भी एक इंडेक्स और होता है जो जनरली जर्नल्स में आपको मिलेगा लेकिन वो कंसीडर नहीं होता है नेक में, वो आप ध्यान रखें, दैट इज द ESCI, दैट इज द एमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज पर द नेक रिक्वायरमेंट. ओनली दीज 3 आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स, SCIE, SSCI, these are included in this as per NAAC requirement. और जो आपकी स्कूपस सोर्स लिस्ट है, जब आप उस पे जाएंगे, अभी भी उसमें लिस्ट आई है जो डिसकंटिन्यू हुए हैं बहुत सारे आपके जो जर्नल्स हैं. इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, जो साइटेशन जैसे आपका जो स्कोर होता है वो सिर्फ आपका स्कूपस देता है, और आपने देखा होगा बहुत सारे जर्नल्स जो है ना वो इम्पैक्ट फैक्टर लिखते हैं अपना कि हमारा इतना इम्पैक्ट फैक्टर है, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, एंड दैट इज नॉट करेक्ट. इम्पैक्ट फैक्टर ओनली वेब ऑफ साइंस देता है, क्लेरिवेट देता है, इसके अलावा कोई भी अगर कोई जर्नल अपना दे रहा है इम्पैक्ट फैक्टर, दैट इज रॉन्ग. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि हम UGC केयर लिस्ट में ही हम अपने पब्लिश कराएं. और सेकेंड थिंग, जो कि आजकल क्लोन जर्नल्स और ये प्रीडेटरी जर्नल्स का बड़ा चल रहा है, आप डायरेक्ट स्कूपस पर सर्च करें और वहीं से आप होम पेज पर जाएं. आप वेबसाइट पे किसी जर्नल का नाम जब आप सर्च करते हैं तो आप उसमें यू कैन मतलब आप फंस सकते हैं उसमें, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे ऑटो जर्नल्स हैं जो अलग लैंग्वेजेस के होते हैं, उनको ट्रांसलेशन करके हिंदी में बना दिया गया है, इंग्लिश में बना दिया गया है. तो आप डायरेक्ट होम पेज पर जाएं, UGC केयर लिस्ट में सर्च करें या स्कूपस में डायरेक्ट सर्च करें और वहां से फिर आप उसकी डिटेल चेक करें, वहीं से डायरेक्ट आप होम पेज पर जाएं. सो ओनली एंड ओनली UGC लिस्टेड जर्नल will be considered in this as per NAAC requirement. राइट. सो इसमें आप एक किस तरह से रिकमेंडेशन लाइक सभी को देना चाहेंगे? जैसे आमतौर पे लोग मानते हैं कि खास तौर से टीचर एजुकेशन में या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में स्कोपस इंडेक्स कराना बहुत मुश्किल है. पीपल आर मोर इंक्लाइंड इन साइंसेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी. यहाँ पर बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं. तो आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ अपने कॉलेज लेवल में या अपने यूनिवर्सिटी लेवल में अगर एक इस तरह की इंडेक्स्ड स्कोपस इंडेक्स लिस्ट अगर हम क्रिएट कर पाए विद लिंक्स और अपने टीचर्स को दे दें, तो क्योंकि वो सर्च थोड़ा आसान हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल ये किया जा सकता है मैम. जैसे आप उसमें सब्जेक्ट वाइज सर्च होता है, अगर जब भी आपका डाउट सेशन होगा मैं उसमें आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकती हूँ. उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज सर्च होता है. आप जैसे मान लीजिए टीचर एजुकेशन है, आप जो भी सब्जेक्ट आप सर्च करना चाहिए आप उसमें डालें, उससे रिलेटेड सारे जर्नल्स आ जाएंगे. देन यू क्लिक ऑन द जर्नल्स, फिर आप उसको उसमें शिमागो में भी टेस्ट कीजिए कि वहां पे उसकी क्या पोजीशन है. तो आप जब उस जर्नल पर क्लिक करेंगे वहां आप देखिए कि ये डिसकंटिन्यू तो नहीं हुआ है या फिर ये कब से कब तक है. ठीक है, देखिए जनरली जो NA जब लिखा आता है ना, जब आप जाएंगे मैं दिखाऊंगी आपको स्कूपस में, तो वो आपका डाउटफुल हो जाता है. फिर वहीं पर एक ऑप्शन होता है जहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, एक स्प्रेडशीट होती है स्कूपस में, वहां आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि ये जर्नल जो है कब डिसकंटिन्यू हुआ था, कब से कब तक है, किस पेज से डिसकंटिन्यू है. जनरली हम क्या करते हैं, हम जैसे देखते हैं तो हमने देख लिया, क्लिक किया कि 2009 से ये मान लीजिए 20 तक उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए आपने 2020 में कराया हुआ है तो यू चेक ऑन द दैट स्प्रेडशीट कि किस पेज तक वो वैलिड है, वो भी देखा जाएगा. तो वन मोर क्वेश्चन से, मान लीजिए एक मेरा एक रिसर्च पेपर किसी UGC केयर लिस्टेड जर्नल में, चाहे केयर लिस्ट 1 हो या 2 हो, उसमें पब्लिश हुआ है. एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2020 में पब्लिश हुआ है और मैं NAAC की SSR जमा करती हूँ और मेरे यहाँ एक DVV वैलिडेशन 24 में होने जा रहा है और आज की डेट में वो जर्नल डिसकंटिन्यू हो गया, तो क्या वो माना जाएगा? हाँ, जब तक आपको वो देखना पड़ेगा वो तब तक वैलिड है. अगर वो उस ड्यूरेशन में है तो वो माना जाएगा, तब वो माना जाएगा. लेकिन जिस समय में आई थिंक ये भी करा जा सकता है कि पेपर्स जैसे जब कोई आप अपने टीम से मांगते हैं तो उसका
एग्जैक्टली साइटेशन या उस पेज की भी हम कॉपी रख सकते हैं मे बी? बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक सर्टिफिकेट भी देती है यूजीसी, वो सर्टिफिकेट आपके पास हो, उसमें नंबर और वो सब होता है, और आप उससे रिलेटेड जितने भी प्रूफ्स हैं वो आप उसमें रखें। इवन जो डिलीटेड लिस्ट भी है ना, अब ये भी आ गया कि डिलीटेड लिस्ट में आप बता दीजिए वो कहाँ पे था, और वो फिर वो चेक किया जा सकता है उसको आराम से। और टीचर, एक क्वेश्चन और है मैम इसी से, जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो फुल टीचर स्ट्रेंथ नहीं रख पाते हैं, मतलब पार्ट टाइम टीचर्स भी हैं, एडहॉक टीचर्स भी हैं, विजिटिंग प्रोफेसर्स भी हैं, और क्या नैक के डॉक्यूमेंट में आप अपने विजिटिंग प्रोफेसर्स, एडहॉक और पार्ट टाइम का भी रिसर्च डेटा दिखा सकते हैं? इज इट वैलिड? No. Only full-time teachers will be included as per NAC. So what is the hidden message? Hidden message is that you carefully publish these your papers, and also recruit full-time faculty in your institution. Yeah. Because as per NAC, part-time or guest faculty research paper will not be included. एक और क्वेश्चन जो पब्लिकेशन से ही रिलेटेड है, वो है जब हम एक इनोवेटिव और एक इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहां रिसर्च फैसिलिटेटिंग मीडियम बन जाए सबके लिए, तो आप बहुत सारे स्पेशली लाइक कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे संख्या जो है टीचर्स की वो काफी होती है, और लोग पब्लिश भी करते हैं, और पब्लिश कराने के बहुत माध्यम भी हैं आज के समय में, राइट? सो हाउ डू यू चेक दैट द पेपर इज एथिकली अप टू द मार्क? किस टाइप से आप कोड ऑफ एथिक्स, जैसे हमारे प्रोफेशनल कोड ऑफ टीचिंग होती हैं, ऐसे कोई प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर रिसर्च है, और उसको अपने इंस्टीट्यूट में ऑपरेशनलाइज कैसे किया जा सकता है? ये एक अगला सवाल है। देखिए, जब आप रिसर्च कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिसर्च कोड ऑफ एथिक्स. रिसर्च एथिक्स, देयर शुड बी एथिक्स कमिटी फॉर द रिसर्च इन द कॉलेज, और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपकी कमेटी होनी चाहिए, रिसर्च कमेटी, एथिक्स कमेटी. प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है. इसके अलावा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी हो जो कि एडवाइस करती है. सो दीज आर द बेसिक 4 requirement that should be come under the research code of ethics. और जब हम इसको बात करते हैं, जैसे हम क्रिएशन ऑफ इकोसिस्टम फॉर इनोवेशंस की बात कर रहे हैं एट कॉलेज लेवल और एट यूनिवर्सिटी लेवल, सो आपके डेडिकेटेड सेंटर्स होने चाहिए दैट इज ओनली फॉर द रिसर्च. कम्युनिटी ओरिएंटेशन इसमें हो सकता है, बहुत सारे इस तरह के सेंटर्स आप उसमें बनाएं, और उसमें लाइक प्लेगरिज्म की जैसे हम बात करें तो सेल्फ प्लेगरिज्म भी आ गया है, ठीक है. तो अब उसमें ये है कि आपका लेस देन 10% होना चाहिए, नॉट 10%. पीपल इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि 10% है तो ठीक है अलाउड हो जाएगा. लेस देन 10% होना, नॉट इवन 10%. इट शुड बी 9.5, 9.6, like 9.8, something like that. So we can develop such kind of committee, ethics committee for the research. हमारा प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हो, हम कमिटीज बनाए, उसमें हम इस तरह के इश्यूज डिस्कस करें रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड. देखिए, एथिक्स में जब बात आती है तो कई बार बहुत सारे इसके पहलू हैं. जब आप इसमें साइंटिफिक कंडक्ट ऑफ रिसर्च की भी बात करेंगे तो जैसे हम जब पब्लिश करते हैं, कई बार हम ऐसे पर्सन का नाम देते हैं कि इसके नाम से पब्लिश हो जाएगा, या एक नेमिंग का भी होता है, वो भी आपका एथिक्स उसमें आता है. तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक डेडिकेटेड सेंटर ऑफ रिसर्च में हम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे एडवाइजरी कमेटी और सब हम बैठे हैं, उन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करें. और फॉर द चेक ऑन दीज जर्नल्स, उसके लिए भी हम अलग से इस तरह के हम ग्रुप्स बनाए जो ये चेक करें. जैसे मान लीजिए आप नेटवर्क कर रहे हैं तो इस तरह के कुछ कमेटी आपकी अलग होगी जो ये चेक करेगी कि ये यूजीसी लिस्टेड में है नहीं, कितना प्लेगरिज्म है, सॉफ्टवेयर पे चेक करे, उनके लिंक्स चेक करे वो वैलिड है या नहीं है. तो वो सारा मतलब हम एक इस तरह से कमिटीज बनाकर हम कर सकते हैं. जी मैम, अगला जो इसी सेशन का जो सेकंड टॉपिक है अदर देन पब्लिकेशंस, वो है लिंकेजेस.
जिस तरह से हम एग्रीमेंट्स के थ्रू और MOUs की तरह लिंकेजेस कर सकते हैं। जैसे पहले भी स्पीकर ने डॉक्टर कुलजिंदर, शी हैज ऑलरेडी हाईलाइटेड कि it's not always necessary to have a formal agreement in the form of an MOU. Collaboration और भी तरीके से की जा सकती है। तो in context of colleges, चाहे वो मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज है, चाहे वो टीचर एजुकेशन कॉलेज है या वो यूनिवर्सिटी है, पहला सवाल जो हमारे पास रिसीव हुआ है कि कोलैबोरेशंस जो हैं वो किनके साथ करी जा सकती हैं और किस तरह की एक्टिविटीज कोलैबोरेशन में की जा सकती हैं with MOU, with functional MOUs and without MOUs। मैं दोनों क्वेश्चन साथ ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा समय कम है। कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं। देखिए बीएड कॉलेजेस में सबसे बड़ा जो मेजर जो हमारा वर्क रहता है वो इंटर्नशिप का रहता है, ठीक है। सो हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद द स्कूल्स फॉर द इंटर्नशिप, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक मेजर पार्ट है जो कि बीएड का होता है। इवन हमारे जैसे बीएड में ही जैसे लाइक हमारे कम्युनिटी सर्विसेज होता है, तो आप किसी ऐसे एनजीओ से जो कि वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप पुअर पीपल पर काम कर रहे हैं, ह्यूमन्स पे काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के एनजीओ, उनके साथ आप MOU कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं और फंक्शनल MOU उनके साथ क्रिएट किया जा सकता है। आप इस तरह की एक्टिविटीज या आप अपने कॉलेज में ही कुछ इस तरह के आप मतलब मान लीजिए आप क्लब्स बना रहे हैं और आप कुछ इस तरह के सेंटर से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेजर आप बीएड कॉलेजेस में आप इंटर्नशिप के लिए या कम्युनिटी सर्विसेज के लिए आप अपने आप को मतलब उसमें आप कोलैबोरेट कर लिंकेज आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की एकेडमिक या आउटरीच एक्टिविटीज भी होती हैं। तो एकेडमिक लाइक आपका स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो है, अगर आप आउट ऑफ द कॉलेज कैंपस की बात करें तो जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन है, उससे रिलेटेड जो आपकी उसमें आप कुछ इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड आप किसी इस तरह के एनजीओ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या हम कुछ इस तरह की इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करें अंडर दोज लाइक कुछ लिटरेरी इवेंट्स हैं या कल्चरल इवेंट्स हैं, और आप दोनों तरह के कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड भी, इंटर्नशिप से रिलेटेड भी, या जो इनोवेटिव जो सेंटर है, आजकल तो इनोवेशन का आ गया है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का आ गया है, तो इस तरह से आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, लिंकेज कर सकते हैं। और फंक्शनल MOUs आप जनरली जैसे मैंने अभी आपको बताया कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड है, तो आप उनके साथ आप फंक्शनल MOUs कर सकते हैं। और लिंकेजेस में जैसे इंटर्नशिप के जो स्कूल्स हैं आप उनके साथ लिंकेजेस कर सकते हैं फॉर द बेटर। आप चैट बॉक्स में भी देख पा रहे होंगे कि सजेशंस भी आ रहे हैं कि लिंकेजेस और जो कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे से NAAC मैनुअल में दिया है कि लिंकेज कैन बी विदाउट इवन विदाउट अ फॉर्मल MOU। इसमें सजेशंस आ भी रहे हैं कि आप प्लांटेशंस कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस ड्राइव्स कर सकते हैं, आपने इंटर्नशिप का बताया है, और साथ ही साथ कोलैबोरेशंस जो है लिंकेजेस हम रिसर्च के साथ भी जोड़ सकते हैं। एकेडमिक वर्कशॉप्स, वी कैन डू जॉइंट पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैम देयर इज क्वेश्चन आंसर्स हम आई थिंक कॉमन सेशन में लेंगे जो चैट बॉक्स में है, और बस मेरे ख्याल से यही मेजर क्वेश्चंस जो हमारे सामने आए हैं, दोज आई हैव टेकन अप। थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर। थैंक यू प्रोफेसर तानिया। परवेश मैम, बड़े अच्छे से आपने आंसर किए काफी कुछ क्वेश्चंस के, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं हमेशा डाउट में रहते हैं। स्पेसिफिकली यूजीसी केयर को लेके जो थोड़ा सा स्पेसिफाई किया आपने वो काफी इंफॉर्मेटिव था। अब हम लास्ट सेशन शुरू करते हैं, अपना थर्ड सेशन, जिसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जिसको भी कोई डाउट है अभी तक के डिस्कशन से, तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है स्क्रीन पर, तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। सर एक प्रश्न चैट बॉक्स में है, अगर आप देखें। जी एक मिनट मैम, वन क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजीसी केयर एंड स्कोपस? मैम वो वैसे ले लेते हैं, मतलब यस डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। यस यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन था मैडम को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजीसी केयर एंड स्कोपस?
और एक क्वेश्चन था, यूजीसी क्या लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 भी है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? यूजीसी क्या लिस्ट क्या है और यूजीसी क्या लिस्ट 2 क्या है? सर यूजीसी केयर लिस्ट 2 है हमारे पास, यूजीसी केयर लिस्ट 1 एंड यूजीसी केयर लिस्ट 2। जो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो जो यूजीसी केयर लिस्ट 2 में आपका स्कूपस सोर्स लिस्ट आती है, 1 में आपके जर्नल्स दैट आर फाउंड क्वालिफाइड थ्रू यूजीसी केयर प्रोटोकॉल्स, पर 2 में आपके जैसे जो ये वेब ऑफ साइंस के अंडर जो आ गया मींस जर्नल इंडेक्स्ड इन जो आपके ये डेटाबेस है ना स्कूपस 2 एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एल्सवेयर, सो जर्नल इंडेक्स्ड इन ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेसेस दैट विल बी इंक्लूडेड इन यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2। इसमें मैंने अभी आपको स्पेसिफाई भी, आपको जैसे अगर आप उस पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो आप जब लिस्ट 2 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे आपको नजर भी आएंगे वेब ऑफ साइंस जो स्कूपस दैट इज इंक्लूडेड इन यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2। Yeah. Thank you, madam. I'll also like to add a little bit to this is sir, actually क्या है कि UGC केयर संजय जी, लिस्ट वो हेलो, जी सत्येंद्र सर, मेरी स्क्रीन शेयर की, इसमें क्या दिखाई दे रहा है इस समय? अभी यूजीसी केयर लिस्ट। ठीक है मैम, आप जी, मैम बस आप कंटिन्यू करिए अपना। सर इसमें एक्चुअली क्या है कि जब आप एक एपीआई स्कोर को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आपका अपॉइंटमेंट होना है, से यू नो द मिनिमम स्कोर दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल, तो उसके लिए जो एपीआई काउंट होता है एंड इवन अंडर कैस के लिए जब आपने प्रमोट होना है फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर, वहां पर ये यूजीसी केयर लिस्ट हेल्प करती है। सो यूजीसी केयर लिस्ट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ जर्नल्स अप्रूव्ड बाय यूजीसी, और जो केयर लिस्ट 2 है वो बेसिक स्कोपस जो है, स्कोपस इज नॉट अ लिस्ट, इट इज एन इंडेक्सिंग, इट इज इंडेक्सिंग ऑन एल्सेवियर, किस तरीके से जर्नल्स जो हैं उनकी रीच और डिसेमिनेशन है। डेटाबेस हाँ जी, तो पर्पस ऑफ रिसर्च जो है वो है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका डिसेमिनेट हो, वो आगे जाए, इसलिए स्कोपस पे ज्यादा विशेष रूप से बल है कि वो इंडेक्स्ड हो, क्योंकि वहां से फिर उसकी साइटेशंस और उसकी एच इंडेक्स और वो सारी चीजें मतलब रीच अगर मैं बोलूं तो वो बहुत अच्छे से उसकी रीच हो सकती है। सो इट इज इंडेक्सिंग, स्कोपस इज इंडेक्सिंग एंड यूजीसी केयर इज अ लिस्ट, दैट इज टू व्हाट आई अंडरस्टैंड। I think Yes, question ma'am. answer is Index. clear now. We take the second question from audience. Anyone have any doubt? ललित जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसमें देखा था। ललित जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर ललित, आपका एक मैंने चैट बॉक्स में देखा था, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए सर क्या डाउट था आपका। थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो स्टाफ मेंबर्स जो बुक्स पब्लिश करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के साथ, जी, क्या वो नैक कमेटी उन बुक्स को और पेपर्स को इक्वली कंसीडर करती है या पेपर की वेटेज ज्यादा होती है? क्योंकि जब भी रिसर्च पेपर का टॉपिक आता है ये कहीं ना कहीं यूजीसी लिस्टेड और कमेटी की खुद की पर्सनल जो ओपिनियन होती है वो डिफरेंशिएट कर जाती है, उसकी वेटेज कहीं ना कहीं कम आप ज्यादा ये कर पूछना लेते चाह रहे हैं क्या दोनों को इक्वल वैल्यू मिलती है, दोनों में वो डिफरेंस करते हैं? यस सर, यस। सर इसमें जो रिसर्च पेपर का जो है ना वो सब क्राइटेरिया अलग है, जैसे 3.2.2 स्पेसिफिकली आपका बुक्स के लिए ही है, नंबर ऑफ पब्लिश्ड बुक्स। जी, सो रिसर्च पेपर का क्राइटेरिया अलग है, 3.2.1 है, एंड 3.2.2 दैट इज रिलेटेड टू बुक्स ओनली। तो वेटेज नेक देती है पब्लिश्ड बुक्स को, क्योंकि दोनों मैटर सेपरेट हुए ना सर, दोनों हाँ दोनों मैट्रिसेस सेपरेट, मैट्रिसेस सेपरेट है, तो आपस में कंपैरिजन की बुक का ज्यादा मिलेगा या पेपर का, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस अलग अलग है दोनों की। संजय जी, मैं आंसर दूं इसका? जी सर, जो डॉक्टर ललित का क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग एपीआई स्कोर, आई होप। नहीं सर, मैं नैक के पॉइंट से पूछ रहा हूँ। नैक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे सर। नहीं, नैक के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि ये बात करेंगे तो नैक किसी के लिए कोई स्पेशल नंबर नहीं देता है, जिसकी मैट्रिक्स जितनी लंबी हो जाएगी वो अलग बात है। आपका बुक्स चैप्टर या बुक पब्लिकेशन होता है या सिंपली आप जर्नल पब्लिकेशन देते हैं, वो अलग है। यदि आप एपीआई स्कोर में जाएंगे तो नेचुरली इंटरनेशनल जर्नल में यदि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो उसके मार्क्स 25 है, नेशनल में होगा तो 15 रह जाते हैं।
तो जर्नल का वेटेज ज्यादा है, बुक चैप्टर का वेटेज से थोड़ा सा कम है। यदि आप बुक के ऑथर हैं तो आपका वेटेज बढ़ जाता है। तो एपीआई स्कोर में प्रमोशन के लिए आप बात करेंगे तो अलग पॉइंट है। आप केयर में जाएंगे तो जैसा भी प्रवेश लता मैडम ने कहा है, बाकी लोग कह रहे हैं, वो एज पर द मैट्रिक्स आपको फॉलो करना, उसमें नंबर कम ज्यादा नहीं होते हैं। अच्छा, एक मैंने स्क्रीन शेयर की, स्क्रीन पे क्या दिखलाई दे रहा है आप लोगों को? यूजीसी केयर लिस्ट ठीक है, जो आप लोग, हम सबको जो कंफ्यूजन रहता है, सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ द यूजीसी केयर। आपको एड्रेस में दिखलाई दे रहा होगा ugcare.uni पुणे, चूंकि इसको पुणे यूजीसी केयर लिस्ट को किया जा रहा है, दैट्स वाई यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एनीवन कैन मेक हिज और हर लॉगिन आईडी ऑफ दिस वेबसाइट। आप जाइए यूजीसी केयर की वेबसाइट पे जाइए, अपना लॉगिन आईडी बनाइए, ओनली देन यू आर एबल टू सर्च द जर्नल। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर तानिया ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है। और आप यहाँ देखेंगे राइट साइड में आपको दिख भी रहा होगा यूजीसी केयर 1 और केयर लिस्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दो दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर में है, हाईलाइटेड है वो, और हाइपर लिंक तो क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। यूजीसी केयर भी इंडेक्सिंग ही है, उसको हम लोग लिस्ट कहने लगे हैं अपने यहाँ पर, लेकिन दिस आल्सो इंडेक्सिंग, दैट्स मीन योर जर्नल इज इंडेक्स्ड इन द यूजीसी केयर ग्रुप 1। और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जर्नल्स हैं, जैसे स्कोपस की बात आ रही है या और भी कई सारे हैं, तो यदि आपका जर्नल स्कोपस में, तो ऑलरेडी इट इज अ पार्ट ऑफ द यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2, तो अलग से आपको अपना जर्नल रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है। जैसे संजय जी अभी कोशिश कर रहे हैं, नया जर्नल लॉन्च किया है हम लोगों ने और उसको अभी स्टार्ट करेंगे, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम केयर के जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करें और हमारे जर्नल एट द मिनिमम टाइम में केयर में आ जाए। सो देन वी विल फॉल अंडर द ग्रुप 1। तो ब्लू कलर है, उसको आप पढ़िए, हाइपर लिंक्ड है तो क्लियर हो जाएंगे आपको। अब मैं इसका देता हूँ कि हाउ टू सर्च अ जर्नल। यहाँ पे यहाँ देखेंगे टाइटल लिखा हुआ है पर यूजीसी केयर लिस्ट में, तो देन यू कैन सर्च बाय द टाइटल, बाय द ISSN नंबर, बाय द पब्लिशर, बाय द सब्जेक्ट, बाय द लैंग्वेज ऑफ पब्लिकेशन। ये 5 इन्होंने इसके अंदर वो लगाए हुए हैं फिल्टर। जैसे मैंने बुलेटिन बर्ड लिखा है, अब उसको आप सर्च करेंगे तो बुलेटिन बर्ड की सर्चिंग में इतने जर्नल्स की लिस्ट अभी आ रही है जिनके नाम में कहीं ना कहीं बुलेटिन लगा हुआ है। अब आप देखिए जो क्वेश्चन अभी बीच में एक आया था कि व्हाट हैपन व्हेन इट इज डिसकंटिन्यूड और कंटिन्यूड। सबसे पहला वाला आप देखिए, बुलेटिन ऑफ द कैलकाटा मैथमेटिकल सोसाइटी, इट स्टार्टेड फ्रॉम 2019 टू प्रेजेंट। अब यदि किसी का पेपर इस जर्नल में जून 2019 के पहले पब्लिश्ड है तो उसको आप यदि क्लेम करेंगे भी नैक एक्रेडिटेशन में, तो नैक उसके लिए आपको वेटेज नहीं देगा। और उसके बाद यदि आपका उस इश्यू में पब्लिश हुआ है तो आपको उस बात के लिए वेटेज मिलेगा। सेकंड नंबर देखिए, फ्रॉम जून 2019 टू जनवरी 2020, साइड में लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूड फ्रॉम जनवरी 2020। तो जब आप केयर में आपका पेपर पब्लिश हुआ है और इस ड्यूरेशन में रहा है इस जर्नल में, तब तो आप उसको क्लेम करेंगे, तो जो डीवीवी में उसको वेरीफाई कर लेंगे और उसका वेटेज आपको मार्क्स दे देंगे। यदि इस इश्यू के पहले और बाद में है, आप क्लेम आपको क्लेम करने में कोई मना नहीं कर रहा, यू कैन क्लेम, लेकिन जब व्हेन दे विल डू द डीवीवी वेरिफिकेशन, तो उस समय फिर इस जर्नल का पब्लिकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप गलत नहीं है, बट एज पर द यूजीसी जो नॉर्म है तो वो केयर को ही केवल फॉलो कर रहा है। अब लेटेस्ट इसका ऑर्डर देखिए यूजीसी का, तो ही सेइंग उसका नेक का, इट इज सेइंग दैट कि वी विल एक्सेप्ट ओनली यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल पब्लिकेशन। वो स्कोपस वर्ड भी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट इज इनहेरेंट, यू आर पब्लिश्ड इन द स्कोपस जर्नल, सो दैट्स व्हाई ऑलरेडी यू आर कवर्ड अंडर द यूजीसी केयर। तो आप इस तरह से लॉगिन आईडी बना के और इसमें किसी भी जर्नल का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारा जर्नल है, हमारा जर्नल है। सो देयर आर 2 टर्म्स, यूजीसी सर्टिफाइड बुक सिस्टम 2019 में खत्म हो चुका है। नाउ देयर इज ओनली 1 टर्म, यूजीसी लिस्टेड, यूजीसी केयर।
तो केयर में है कि नहीं है, आप सिंपली यहाँ जाके इन 5 फिल्टर में से किसी एक को यूज करके आप वहां पर चेक कर सकते हैं। देन यू विल सी यहाँ पर व्यू लिखा हुआ, आप व्यू करेंगे तो फर्दर डिटेल, यदि इसकी वेबसाइट है या इसका कोई एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है तो वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसे सिंगापुर का एक जर्नल है वो तो आप देखेंगे तो नीचे 1 2 आ रहा है, तो देन लिस्ट इज कंटिन्यू, तो आप इसको देखते जाइए। आपको एक मैंने देखी मेरा पेपर शोध संचार में पहले पब्लिश हुआ था और उसका स्टेटस क्या है, डिसकंटिन्यूड फ्रॉम अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 तक जितने पेपर इसमें पब्लिश हुए हैं, ये लखनऊ से पब्लिश होता था, वो सारे एक्सेप्टेड हैं। अब उसके बाद यदि इस जर्नल में आपका पेपर है तो यू आर नॉट सपोज टू क्लेम इन द नेक। एक बात और है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग जब पीएचडी करते हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं पीएचडी करते हैं, तो बाय एक रूल आता है कि योर रिसर्च पेपर शुड बी पब्लिश इन द यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल। उस केस में हमारे स्कॉलर्स को केयर लिस्ट का ध्यान रखना चाहिए। बट नाउ एज ए फैकल्टी हम किसी भी जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं यदि वो क्लेम कर रहा है कि वी आर पीयर रिव्यूड एंड वी आर हैविंग द रेफरेंस फॉर्म, तो आप क्लेम कर सकते हैं, आप उसमें पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू विल गो फॉर द नेक एक्रेडिशन, तो फिर नेक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप अपनी सीवी में नंबर बढ़ाने के लिए यू कैन पब्लिश द पेपर इन एनी जर्नल, उसमें कोई इशू नहीं है, वह जर्नल शुड बी वैलिड और उसका डिटेल होना चाहिए अवेलेबल। लेकिन यदि केयर में आप नहीं है और आप क्लेम करेंगे नेक के समय, तो फिर वहां आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट एडवांटेज नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन थ्रू द डीवीवी पॉसिबल नहीं है। आई होप शायद कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस वाली वेबसाइट को देखकर। जी सर आपने काफी कुछ क्लियर कर दिया। सर एक और क्वेश्चन है, ये है डॉक्टर नीतू चावला का, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन एज मेनी पब्लिशर्स क्लेम दैट दे आर नेशनल और इंटरनेशनल। एक्चुअल में किसी पब्लिशर को कैसे माने कि वो नेशनल है या इंटरनेशनल है? इसकी कहीं डेफिनेशन तो मिलती नहीं डॉक्यूमेंट्स में देखे तो। डेफिनेशन कहीं नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक तो होता है कि यदि पब्लिशर आउट ऑफ इंडिया है तो नेचुरली, और आपका पेपर उसमें पब्लिश हो रहा है और पब्लिकेशन की जो जमीन है या जो उसका पब्लिकेशन हाउस है, उसका रजिस्ट्रेशन किसी आउट ऑफ द किसी इंडिया के बाहर कहीं भी है, तो नेचुरली वो इंटरनेशनल हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस को दिमाग में रख, रजिस्टर्ड ऑफिस आउट ऑफ द कंट्री है तो हमारे लिए तो इंटरनेशनल हो गया वो। और हम इंडिया में रह के अपने जर्नल को इंटरनेशनल बना रहे हैं, तो देन वी शुड हैव द पब्लिकेशन ऑथर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, कैन क्लेम कि हमारे पास में इंटरनेशनल है और हमारे पास जो ऑथर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे रीडर्स हैं, दे आर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और देन वी हैव द सम इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन आवर एडिटोरियल बोर्ड एटसेट्रा। तो ओनली देन वी कैन क्लेम कि देखो रेगुलरली हमारे पास में इंटरनेशनली पेपर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का अब डिजिटल यूज होने लगा है चीजों का मार्केटिंग को लेके, तो कोई भी ऐसा पब्लिशर नहीं है जो अमेजोन पर नहीं है, फ्लिपकार्ट पे नहीं है, या जो भी और भी प्लेटफॉर्म सारे और आपके इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनली यू आर। अब तो आप सर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सर्कुलेशन जो पहले सर्कुलेशन की जो बात होती थी तो वो तो इंटरनेशनली सभी का हो गया। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि अगर इंडियन पब्लिशर कोई बुक्स पब्लिश करता, मान लीजिए एडिटेड बुक है, तो उसमें फॉरेन ऑथर्स के भी चैप्टर्स होने चाहिए, तब हम उसको इंटरनेशनल मान लेते हैं, या फिर पब्लिशर ही आउट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हो, तब हम उसको नहीं, ऐसा तो इसका मतलब इंडिया का पब्लिशर कभी इंटरनेशनल बन ही नहीं पाएगा। नहीं बनेगा ना। जैसा आपने कहा कि इंडियन पब्लिशर से कराते हैं, लेकिन उसमें पेपर्स जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी होने चाहिए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप एक्सेप्ट करिए, उनसे इनवाइट करिए, उसमें पब्लिकेशन में बुलाइए लोगों को, बोर्ड में भी आप रखिए, तो आप इंटरनेशनल हो जाएंगे। हाँ, मतलब एज सच कोई डेफिनेशन और कुछ कहीं मेंशन नहीं है किसी भी उस तरह के नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग सेमिनार करते हैं, बहुत से सेमिनार में लोग क्लेम करते हैं वी आर इंटरनेशनल, वी आर ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल सेमिनार, चलता है एक पर्सन है केवल, उसमें आपने उसको बुला लिया एज ए रिसोर्स पर्सन और आपने कह दिया कि हमारा इंटरनेशनल हो गया है, तो जी गवर्नमेंट नॉर्म्स में जाएंगे तो इंटरनेशनल नहीं है वो।
नहीं, उसमें तो नेक भी जो अपने एसोसिएशन में कोलैबोरेशन में प्रोग्राम्स कराता है तो उन्होंने कुछ डिफाइन करा हुआ है कि मिनिमम इतने स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स हों या कुछ ऐसा हो, तो फिर आप उसको, जैसे हम लोग कराते हैं तो मिनिमम 7 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स का था, तो अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर वो प्रोग्राम इंटरनेशनल होना चाहिए। मतलब हमने क्लेम किया हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास यदि कोई भी पर्सन इंटरनेशनल नहीं आया है, और उसके लिए एक रूल और आ गया है कि फर्स्ट वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री एंड द फॉरेन मिनिस्ट्री एंड द एम्बेसी रिलेटेड, तो ही फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे उसको अच्छा फॉर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स दिखला सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट बॉडीज के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जी, एक और क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे जो लग रहा है ये कि जो मूक्स में या स्वयं के जो कोर्सेज हैं, क्या उनको हम वैल्यू एडेड कोर्सेज कंसीडर कर सकते हैं? नहीं या इसमें यूनिवर्सिटी को लेके एक अलग परसेप्शन है और कॉलेजेस को लेके एक दूसरा परसेप्शन है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के एसओपी में एक जगह पर लिखा हुआ था कि ऑनलाइन कोर्सेज आउटसोर्स नहीं कर सकते आप, इट मींस फिजिकल कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं। लेकिन जो स्टैंड ऑन ऑल कॉलेजेस है जहां पर टीचर्स ही 7-8 हैं, तो उतने स्पेशलाइजेशंस पॉसिबल नहीं है, तो क्या वहां पर भी वो कंडीशन लागू होती है? क्योंकि एसओपी में यूनिवर्सिटीज में तो गिवन है, कॉलेजेस में कहीं भी गिवन नहीं है वो चीज। देखिए नेचुरली नेक ने उसको डिफरेंशिएट भी किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। देखो वैल्यू एडेड कोर्स का जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बीएड स्टूडेंट को एक कोर्स अभी ऑफर किया है, काउंसलिंग स्किल्स। एक कोर्स हम चला रहे हैं अपने यहाँ पर ऑलरेडी, टीचर एज ए काउंसलर। उस जो कि थ्योरेटिकल कोर्स है वो, और हमारे यहाँ पर चूंकि यूनिवर्सिटी है तो उसका एडवांटेज है कि हमारे पास में लिबरल एजुकेशन के भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लोग अवेलेबल, उनकी हेल्प से एक कोर्स लॉन्च किया हमने वैल्यू एडेड, और उसको नाम दे दिया काउंसलिंग स्किल। अब वहां पर काउंसलिंग से रिलेटेड ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट कहिए, एक्टिविटीज कहिए, उसको वहां पर फोकस किया है। तो अभी यूनिवर्सिटी में हमें एडवांटेज है या मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में एडवांटेज तो ये है कि आप अलग अलग अपने दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इवन यदि आपके यहाँ स्कूल चल रहा है तो आप अपने स्कूल के लोगों को भी बुला के सीनियर टीचर से, प्रिंसिपल से भी अपने कोर्स को आप पढ़वा सकते हैं। या वैल्यू एडेड कोर्स है तो आप 4-5 टीचर मिलके भी कोर्स रन कर सकते हैं। वैल्यू एड इज नॉट अ सिंगल टीचर कोर्स। यस, टीचर्स यू कैन इन्वॉल्व इन द वैल्यू एडिशन। हाँ, टीम वर्क में हो सकते हैं। रूल ये है कि इसमें जैसे क्रेडिट की बात आई थी, क्रेडिट का मतलब है कि मार्क्स देना। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम पे जहाँ क्रेडिट सिस्टम फॉलो हो रहा है तो ये नॉन क्रेडिटेड ही नेक ने इसको माना है। इसका अर्थ है कि आप इसका कोई नंबर स्टूडेंट को नहीं देंगे। और सेकंड है इसमें इट इज नॉट कंपल्सरी टू ऑल स्टूडेंट टू अटेंड द वैल्यू एडेड, लेकिन इट इज बेटर कि आपके सारे स्टूडेंट अटेंड करें उसको। लेकिन उसमें आप देखेंगे तो नेक के मैनुअल में तो हाउ मेनी टाइम्स यू ऑफर दैट वैल्यू एडेड कोर्स, तो आप उसी एक कोर्स को 2 बार 3 बार भी एक साल में ऑफर कर सकते हैं। यदि आप एनुअल मोड में जा रहे हैं तो आप एक साल में 2 बार, भाई कुछ स्टूडेंट ने एक बार में कर लिया, कुछ ने सेकेंड टाइम में किया, कुछ ने थर्ड टाइम में कर लिया। सेम वे आप एक सेमेस्टर में 2 बार 3 बार या अलग अलग सेमेस्टर्स में आप ऑफर कर सकते हैं। और बेटर है कि जो मैंने एक बार शायद लास्ट इंटरेक्शन में बतलाया था कि वैल्यू एडेड कोर्स का एक प्रॉपर आप पहले ब्रोशर बनाइए, उस ब्रोशर को स्टूडेंट को फ्लोट करिए, अपने नोटिस बोर्ड पे दिखलाइए, उसको ये प्रूव करिए कि हमने अपने स्टूडेंट्स को इन एडवांस इन्फॉर्म किया था कि वी आर ऑफरिंग 1 वैल्यू एडेड कोर्स। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहे, कौन उसका कोऑर्डिनेटर है, कौन उसमें रिसोर्स पर्सन्स होंगे, उसका पूरा शेड्यूल दीजिए, आप कितने दिन चलाएंगे उन दिनों को यदि फिक्स कर देते इन डेज में हमारा कोर्स चलेगा, भले आप एक दिन में 1 घंटे चलाएं तो 30 दिन आपको चलाना होगा, 30 वर्किंग डेज। आप 2 आवर्स दिखला रहे हैं तो आप 15 वर्किंग डेज में उसको फिनिश कर सकते हैं। तो पूरा शेड्यूल आप दीजिए। फिर जब स्टूडेंट अटेंड करेंगे तो आजकल फोटोग्राफी है, जीपीएस कैमरे का टाइम है, उसको आप सेव करके रखिए। फिर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस फिजिकली मेंटेन करिए, उनके नाम विद सिग्नेचर उसको अपने पास में मेंटेन करके रखिए। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स देन यू कैन हैव द रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट। आप असेसमेंट भी लीजिए, आप उनका चाहे ओरल, वाइवा या उसका असाइनमेंट जो भी आप क्राइटेरिया बनाएंगे उसका एक प्रॉपर रूब्रिक बनाइए। वो रूब्रिक भी आपके डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा, और उस रूब्रिक के बेस पे जितने लोगों को आप सक्सेसफुल डिक्लेयर कर रहे हैं उन सबको आप एक सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें था कि वी आर द कॉलेज नॉट द यूनिवर्सिटी, तो सर्टिफिकेट
आपको अपने लेवल पे इशू करना है। आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर और आपका प्रिंसिपल या हेड किसी को भी इन्वॉल्व करके आप अपने लेवल पे सर्टिफिकेट को इशू करिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट का है तो आप सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए या उसको प्रिंट करवा के आप दे दीजिए। तो वैल्यू एडेड में आप जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं और दूंगा, जैसे हम लोग स्काउट्स गाइड स्कैम करवाते हैं तो उसको हमने सॉफ्ट स्किल में डाल दिया। सॉफ्ट स्किल में एक छोटा सा पार्ट हो गया कि हमने उसमें कई सारी सॉफ्ट स्किल्स की एक्टिविटीज करवाई, उसमें एक स्काउट्स गाइड की एक्टिविटी भी करवा दी क्योंकि वो भी सॉफ्ट स्किल रिलेटेड ही है। स्काउट गाइड का एक ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की वेबसाइट आप देखिए तो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसका, आप उसको भी करवाइए प्लस स्काउट गाइड स्कैम के संग उसको कनेक्ट कर दीजिए। तो वैल्यू में जो सर ने बहुत अच्छा कहा था सुराना सर ने कि ये केवल वैल्यू मतलब मोरल वैल्यूज की बात नहीं हो रही है, एनी स्किल डेवलपमेंट कि जिससे आप अपने स्टूडेंट की स्किल को एनहांस कर रहे हैं और जो कि उसको, चूंकि हम लोग सब टीचर एजुकेशन के पार्ट है, सो देन वी आर ट्राइंग टू मेक देम अ गुड टीचर। हम एक इशू और है सर इसमें कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में तो चूंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, हमारे पास में काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जो कॉलेजेस हैं जैसे स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हैं तो वी आर बाउंड टू फॉलो द सिलेबस ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। मेरा खुद का अपना अनुभव रहा है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में 14 साल काम किया है, तो एक लिमिटेशन थी कि यही कोर्स आपको पढ़ाना है, इन्हीं का एग्जाम होगा। सो हाउ यू आर एडिंग द वैल्यू टू योर स्टूडेंट, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ना आपकी यूनिवर्सिटी रोकती है, ना आपको नैक रोक रहा है, ना आपको कोई रोकेगा, बशर्ते आपका मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करे। तो इस तरह की वैल्यू एडेड कोर्सेज, डेवलपमेंट कोर्सेज आप अपने लेवल पे डिजाइन करके ऑफर करिए। एक जो बहुत बड़ा इशू है, जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें क्या सीखने को मिला, हमने बीएड कर लिया, हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला, वो हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है, और व्हाई वी शुड कम टू योर कॉलेज, क्योंकि हम तो आखिरी के 4 दिन में पढ़ के एग्जाम दे के पास हो जाते, तो व्हाई शुड कम टू कॉलेज, नॉन अटेंडिंग का जो एक इशू है, सो वो कहीं हम एड्रेस कर सकते हैं बाय ऑफरिंग वेरियस वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। आईसीटी का जमाना है तो आईसीटी से रिलेटेड ले लीजिए, गूगल फॉर्म बनाना, उनके डिजिटल एनहांसमेंट को आप अलग से वैल्यू एडेड कोर्स में ले आइए। 2 बात करता है नेक, एक जगह वैल्यू एडेड की बात करते हैं, एक जगह स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। तो स्किल डेवलपमेंट आपका एक क्रेडिट कोर्स भी हो सकता है, दैट मे बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन वैल्यू एडेड कोर्स इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो आउट ऑफ द सिलेबस होगा, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं विद द स्टूडेंट। ये जितनी मेरी समझ थी वो इसके बारे में ये है। थैंक यू सो मच सर, काफी चीजें आपने। एक क्वेश्चन इसमें एक और था कि नैक यदि हमसे कॉलेज हमसे हमारे पब्लिकेशन की कॉपी मांगते हैं, देन यू हैव टू पे, यू हैव टू सबमिट द कॉपी, और करना भी चाहिए। एक सिस्टम और ऑलरेडी अपने कॉलेज में बना के रखिए, जैसे ही किसी भी फैकल्टी का, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी पेपर पब्लिश होता है, इमीडिएटली यू टेक इट्स सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी एंड कीप इट इन डॉक्यूमेंट्स तुरंत। और ये हमारी लाइबिलिटी भी है, बिकॉज यू आर यूजिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। यदि आप पर्सनल वे पे निकाल रहे हैं, इंस्टीट्यूट का कहीं एक वर्ड यूज करते हैं टेक्निकल, दिस इज द नेम इज एफिलिएशन। If your affiliation with your college or university, then it is your moral duty to immediately contact to your concerned faculty and submit the document। देखिए मेरा पेपर है या मेरी बुक है या बुक चैप्टर पब्लिश, जब तक पब्लिश नहीं हो तब तक नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर once it is published then you submit the all proof। It is your moral duty as well as your professional duty also। आप उसको हाइड नहीं कर सकते हैं। और जैसे एक और मैं बता दूं, यदि स्कोपस में आप चले जाते हैं और आपका पेपर स्कोपस में जाता है, तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी कंसर्न पर्सन है उसके पास में ऑटोमेटिकली उसके डेटाबेस में आ जाता है कि देखिए आपके यूनिवर्सिटी के नाम से एक पेपर स्कोपस में पब्लिश हुआ है, तो आपका एफिलिएशन आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के साथ में कनेक्टेड होता है, तो वही ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है वो। जी सर। जी थैंक यू सर। काफी सारी चीजें आपने देखा जाए, जिसे कहते हैं कि जितना भी हमारा डिस्कशन था अभी तक का, और जहां पर भी एक होता है ना रिव्यू करें और गैप्स नजर आ रहे थे, तो वो आपने फुलफिल कर दिया। मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ इस सेशन का। डॉक्टर शैला सारंग महाराष्ट्र से हैं मैडम। मैम पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है
उसमें अपने कॉलेज के स्टूडेंट के लिए वो कोर्स अपन रन कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कैसा होता है कि एकेडमिक कॉलेज के जो लेक्चर्स है उनको टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, तो वो बोलते कि हमारे लिए एक छोटा सा कोर्स आप बनाइए टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर, और सीओपीओ मैपिंग जो है वो किस तरह से लिखना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसके ऊपर भी आप एक कोर्स बनाइए। तो अपन ऐसा कोर्स ले सकते हैं क्या? इसमें इसको नैक में कंसीडर कर सकते हैं? इसमें देखिए मैम, ये जो सीओपीओ वाला है ये किन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं आप? एकेडमिक कॉलेज के लेक्चरर के बारे में बात करें सर। मैं देखिए एकेडमिक नहीं, आगे चल के उनको करना क्या है, मतलब जॉब कौन सा करेंगे वो पास आउट होने के बाद? नहीं, पास आउट तो नहीं होते वो कॉलेज में ही है। अच्छा, वो लेकिन लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं आप? संजय जी, लेक्चरर्स की बात कर मैम रही ये कह रही हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज में एक सिस्टम है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, एमएटी मानेसर देखिए, तो मैडम शेयर करती है बार बार एकेडमिक कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी में एक बॉडी बनी हुई होती है फॉर द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उनका काम ही यही होता है कि आप फैकल्टीज को ट्रेनिंग, मैम आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट सेम टॉपिक। यस सर। तो उसमें आपके टीचर्स एज ए रिसोर्स पर्सन काम करेंगे वहां पर। ओके, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि जो रिफ्रेशर और वैसे ओरिएंटेशन कोर्सेज टीचर्स के लिए नहीं होते, वो जो एनुअली होते हैं। नहीं, आप लॉन्च कर रहे हैं तो क्राइटेरिया 6 में आप क्लेम करेंगे उसको नैक में कि देखिए हमारे टीचर एज ए रिसोर्स पर्सन वहां पर जाके कोर्स पढ़ा रहे हैं। और स्कूल के भी टीचर रहते हैं सर, उनको भी एक्शन रिसर्च करना पड़ता है, तो एक्शन रिसर्च का भी कोर्स हम कर सकते हैं ना सर उसमें? नहीं, आप देखिए ये यू आर फैकल्टीज वर्किंग एज ए रिसोर्स पर्सन, आप अपने स्टूडेंट के लिए करवाएंगी वो अलग एरिया है, आप अच्छा, स्टूडेंट के लिए करेंगी ऑफर वो अलग एरिया है। यहाँ जो कोर्स की बात मेरे हो रही कॉलेज है, के, हाँ सर, अदर स्टूडेंट के लिए ही करना है, जैसे कि स्टूडेंट में फैकल्टी भी आ रही है एकेडमिक कॉलेज की, तो और स्टूडेंट में स्कूल के टीचर भी आ रहे हैं। आप क्राइटेरिया 6 को पढ़िए एक बार नैक के, उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, जैसे मैम जो कह रही हैं कि बाहर के स्कूल के टीचर्स की जो बात कर रही हैं, तो ये उसमें नहीं आ सकता जो क्राइटेरिया नंबर 3 है जिसमें हम एमओयू साइन करते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम वाला? 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, आपको डबल एडवांटेज मिलता है वहां पर। क्योंकि अगर ये टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं और इनके स्टूडेंट्स वहां पर प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते हैं, तो इसका कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम वाला एमओयू साइन हो सके दोनों के बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मैडम, चूंकि हमारी अभी बात शुरू हुई थी वैल्यू एडेड से, दैट्स व्हाई उसको कनेक्ट कर रहा था, वो वैल्यू एडेड आएगा। वैल्यू एडेड आपके अपने स्टूडेंट के लिए है, और यदि आप दूसरों के लिए काम कर रही हैं तो सर ने बहुत बढ़िया बोला है कि क्राइटेरिया 3 और क्राइटेरिया 6 इन 2 को आप पढ़िए, तो वहां से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर और एक क्वेश्चन था मेरा, कि जो हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम लेते हैं और उसमें हम पेपर मांग लेते हैं, तो उसके ऊपर हम जब एक आधा जर्नल पब्लिश करते हैं तो उस जर्नल को ISSN नंबर दिया जाता है, तो वो UGC केयर लिस्टेड में आता है या नहीं? नहीं, आपको प्रॉपरली केयर लिस्ट में मैंने भी आपको स्क्रीन शेयर की थी, और अभी मैंने लिंक भी UGC केयर का इसमें डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं। तो सिंगल इशू UGC केयर में नहीं आता है। अच्छा, यदि जर्नल ऑलरेडी UGC केयर में है और आप उस जर्नल के संग कोलैबोरेशन करके स्पेशल इशू पब्लिश कर रही हैं, तब तो एडवांटेज मिलेगा आपको केयर का। अच्छा, लेकिन स्पेशली आपने एक इशू निकाला है तो प्रोसीडिंग्स में आएगा वो, या आपकी वो एडिटेड बुक में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। काफी अच्छा सेशन रहा आज का पूरा, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो अपना वीडियो ऑन कर लें तो एक फोटोग्राफ सभी का हो जाए अच्छा सा, और तानिया मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर। और मैं अभी एक चीज और मैं बता दूं कि मैं अभी फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा, और उसको लीव करने से पहले सभी फिल कीजिएगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि टोटल 12 सेशंस हमारे होंगे कंप्लीट 1 ईयर में, इस वाले जैसे आज डिस्कशन हुआ, एवरी मंथ 3rd या 4th संडे को एडवांस में आपको बता दिया जाएगा। FDP सर्टिफिकेशन के लिए 10 सेशंस को अटेंड करना
इट इज मैंडेटरी। जो लोग मुझे थोड़ा पर्सनली जानते हैं तो मैं उनसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर बाद में रिक्वेस्ट आ जाती है कि मैंने 8 किए थे, प्लीज सर्टिफिकेशन मुझसे हो नहीं पाएगा, ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट फर्स्ट सेशन में ही है कि प्लीज मिनिमम 10, क्योंकि 2 मैंने इसलिए छोड़ रखे हैं कि कोई जरूरी काम हो सकता है किसी को भी, तो 2 संडेज वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन मिनिमम 10 अटेंड करें। तानिया मैम कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू। सो on behalf of the Council for Teacher Education Foundation, Delhi NCR chapter, in collaboration with Council for Teacher Professional Development, CTPD, I would firstly like to thank the chief guest for today's session 1 of this 10 days national level principal development program on NAAC assessment and accreditation for higher education institutions. Dr. Ajay Surana ji, who's the head at the Department of Education, Banasthali Vidyapith. Sir, thank you for accepting our invitation as chief guest and also putting forth your views that NAAC is a quality of, it is a way of quality assessment. It is not a one-day affair. And I think your talk was very much in sync with our Prime Minister Narendra Modi's talk, which was given in Varanasi, कि परिणाम के साथ प्रमाण बहुत जरूरी है, तो NAAC से प्रमाण ही मांगता है. Thank you so much, sir, for accepting our invite. I'm also thankful to our experts for the day, Dr. Kuljinder Kaur ji, officiating principal KC College of Education, Nawashahar, Punjab, for taking up questions that came to us from the quality circle on value added courses and honoring diversity. Thank you, madam. And second expert, Dr. Parvesh Lata ji, HOD and Associate Professor, School of Education, GD Goenka University. Thank you for taking up questions on research publications, agreements and MOU. Special thanks to all the participants for a very brainstorming session, question answer round. This is the purpose of Quality Circle, and the first session on this 24th of July has kick-started this quality dialogue. I will also like to thank our CTEF Delhi NCR chairperson and CTPD chairperson, Dr. Satendra ji, who is leading us and who explained things wonderfully. So thank you so much for your insights and always giving us this opportunity to keep organizing such sessions. Special thanks to Dr. Sanjay ji, who's the Secretary General, instrumental brainstorming and keeping us all active into this. Thank you so much, sir. And once again, looking forward for more qualitative sessions coming in the future. Over to you, Sanjay sir. Thank you. थैंक यू मैम। ये जो प्रोग्राम हम करते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि जो हम लोग नजर आ रहे हैं आपको, हमारे प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता हो गए, तानिया मैम हो गई, जुगनू खट्टर मैम बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया वाला वो देख रही है। मैं चेक कर रहा था, पहले मैं जब CTF दिल्ली NCR चैप्टर गूगल सर्च में डालता था वो नजर नहीं आता था, अब नंबर 1 पर नजर आता जब भी उसको डालो तो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम लर्निंग एनवायरनमेंट का डेवलप हो जाए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उसमें सोशल मीडिया का आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल है और वो जुगनू मैम बहुत अच्छे से देख रही हैं। तो डेफिनेटली हमारे जितने भी लोग किसी ना किसी लेवल पे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप सभी को पता भी होना चाहिए उस चीज का। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को लीव करने से पहले मैंने क्योंकि शेयर कर दिया आपको फीडबैक लिंक, तो प्लीज उसको जरूर फिल कीजिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।